student, today I am teaching you social science class 8. Our today's topic is impact of British educational policy, and this is the topic of our history chapter 8, that is spread of modern education in India. Okay, so in my previous video I already started this chapter, and many important topic related with this chapter I taught you, like motives of British educational policy, then the evaluation of the educational policy of the British, influence of Orientalism on British educational policy, and the Anglistic point of view. Now, in this impact of British educational policy, so due to the emphasis on Western education, the traditional Indian education given by the Pathshala and Madrasa declined. Now, due to of the British educational policy, they totally declined the education which is given earlier in Pathshalas and Madrasas. ओके तो पहले जो पढ़ाई मदरसे और पाठशालास में जो होती थी इंडियन एजुकेशन के अकॉर्डिंग, वो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दी. दिस वॉज अ मेजर लॉस बिकॉज लैक्स ऑफ चिल्ड्रन स्पेशली इन द रूरल एरियाज वो अटेंडिंग देयर पाठशालास एंड मदरसेस. तो इससे बहुत सारे चिल्ड्रंस का लॉस हुआ जो कि रूरल एरियाज़ में पाठशाला और मदरसे में जाके पढ़ाई करते थे. Now, second impact, the emphasis on English as the medium of instruction in place of Indian language prevented the spread of education to the mass. Moreover, it creates a wide linguistic and cultural gap between the Western educated Indians and the masses. So, ये जो इंग्लिश मीडियम में जो एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा, इंडियन लैंग्वेज पे एजुकेशन नहीं दी जाएगी, और पहले जो होते थे वो इंडियन लैंग्वेज में ही एजुकेशन दिया जाता था, तो धीरे धीरे जो हमारा कल्चर था वो धीरे धीरे कहीं पे ख़त्म होता जा रहा था और वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम बढ़ता जा रहा था. जो हमारा इंडिया था वो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को एडॉप्ट करता जा रहा था. मोरओवर बिकॉज द स्टूडेंट हैड टू पे फीस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, एजुकेशन बिकम अ कॉस्टली एंड बियॉन्ड द रीच ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस. तो जो हमारा स्कूल का जो सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम था, by Britishers changed. Now it becoming very costly and the normal people were not able to afford to pay such a high fees. ठीक है, तो वो उस टाइम पे फीस भी नहीं पे कर पाते थे. A major drawback of the British educational policy was the almost total neglect of education of girls for which no funds was allotted. Okay, so this is the major impact. The Britishers not think about a girl, not even a single point. Okay, and they not allot a single fund for the girl education. तो गर्ल एजुकेशन के लिए तो बिल्कुल भी फंड नहीं आया. द एजुकेशनल पॉलिसी ऑल्सो नेग्लेक्टेड साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन. इसमें साइंटिफिकली और टेक्निकल एजुकेशन भी नहीं थी, उसको भी नेग्लेक्ट किया गया. By 1857, there were only 3 medical colleges in the country at Calcutta, Bombay and Madras. तो अगर हम 1857 में देखें तो हमारे कंट्री में जो मेडिकल कॉलेज थे वो कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में था सिर्फ. There was only one engineering college of Roorkee, but that too was open only to the Europeans. और रुड़की में एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, ठीक है, वो भी सिर्फ यूरोपियंस के लिए खुला था. In the root of many of these weaknesses lays the problem of finance. The government was never willing to spend more than a scanty sums on education. ठीक है, तो दूसरी वजह ये भी थी कि इकोनॉमिकली जो हमारे इंडियंस थे they were very weak in the financial conditions, so they not able to take the admission in such a expensive institutions. Next, however, Western education did have some positive impact also. As a result of the Western education, a large number of Indians developed a rational, circular, democratic and nationalist outlook. ठीक है, अब जब वेस्टर्न एजुकेशन उन्होंने पढ़ा तो इसका फ़ायदा भी हुआ. ठीक है, a number of Indians developed a rational, circular, democratic
अब उन्होंने किस तरह से रहना चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, क्या होता है, एंड दे स्टडी अबाउट नेशनलिस्ट आउटलुक ऑल्सो। ओके, तो उनको ऐसा लगा कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। नाउ these educated Indians were the first to feel the humiliations of British rule, and after getting the education they start feeling that Britishers are exploiting very much, they are humiliations doing, so they are उनका जो मानवता के खिलाफ वो उनसे काम करवाते हैं, अपने रूल एंड रेगुलेशंस थोपते हैं। तो जो देयर नेशनल एजुकेशन गेव देम अ एबिलिटी टू स्टडी द इविल इफेक्ट्स ऑफ फॉरेन रूल्स। तो एजुकेशन, जो नेशनल एजुकेशन थी जो उनको मिल रही थी, उससे उनको ये एक एबिलिटी उनके अंदर क्रिएट हुई और उन्हें महसूस होने लगा कि फॉरेन के जो रूल्स है वो हमारे ऊपर बुरी तरह थोपे जा रहे हैं और गलत तरीके से हमसे काम कराया जा रहा है unnecessarily. So they were inspired by the ideas of American and French Revolution and started questioning the unjust policies of the British rule. तो जब उन्होंने ऐसा फील किया and they inspired by reading or by understanding the American and French Revolution, then they feel that the unjust policies of the British rule, we also have to be work for our freedom, work for our flexibility, work for our getting independent. So the English language also played an important role in unting the educated Indians. तो language English ने भी बहुत ज़्यादा help किया इंडियन जो वेल एजुकेटेड इंडियंस थे उनको मौका मिला कि वो अपनी बात कम्युनिकेट कर सके, एक्सचेंज कर सके among the in front of the Britishers. Okay. Now next very important topic, that is promotion of national education in India. So Indian thinkers and visionaries like Mahatma Gandhi and the Rabindranath Tagore reacted against Western education and promote national education rooted in Indian traditional and value system. तो जो हमारे इंडियन थिंकर्स थे, विजनर्स थे, जो उनको विजनर्स मीन जो फ्यूचर के बारे में सोच के पॉलिसीज़ जो बनाते थे, लाइक महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने रिएक्ट किया और इन्होंने जो हमारी नेशनल जो एजुकेशन थी उसकी रूट स्टार्ट करी। ठीक है, महात्मा गांधी वांटेड टू प्रमोट एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस डेवलप अ सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अब महात्मा गांधी ने जो एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहते थे वो एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे जो कि इंडियंस की जो अपनी खुद की डिग्निटी, अपना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में उनको एक इच्छा जगे। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ही कॉल्ड आउट टू द यूथ टू लीव गवर्नमेंट रन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। देन इन्होंने इंडियन मूवमेंट के तहत जितने भी हमारी यूथ थी उसको प्रवोक किया और उनसे बोला कि यू ऑल लीव गवर्नमेंट रन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो जो स्कूल और जो कॉलेजेस गवर्नमेंट के चल रहे हैं उनको आप छोड़ो। महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल दैट इंडियन लैंग्वेज शुड बी द मीडियम ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे महात्मा गांधी भी चाहते थे कि इंडियन का जो लैंग्वेज होना चाहिए वो अपने खुद की मातृभाषा में होना चाहिए। एजुकेशन इन इंग्लिश ही फेल्ट crippled Indians and they did not know how to relate to the masses। तो crippled का मतलब है रेंग रहे हैं, because the language is very tough for the Indians, because sudden we have to be adopted the new language which is very difficult for each and everyone. Okay, then according to the Gandhi ji, people should learn by doing, they must work with their hands, learn a craft। तो गांधी जी ये महसूस करते थे कि जो भी बंदा सीखता है वो करके सीखता है। ओके, ओनली देन विल दे गेट ऑल राउंड एजुकेशन विच विल हेल्प देम टू डेवलप बोथ देयर माइंड्स एंड बॉडी। सो बाय अकॉर्डिंग टू द गांधी जी, ही थॉट दैट इफ यू वांट टू बी डेवलप योर बॉडी यू मस्ट बी डेवलप योर माइंड ऑल्सो बाय डूइंग ऑल राउंड डेवलपमेंट। आप किसी भी बॉडी का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, according to another one, that one Rabindranath Tagore stated शांति निकेतन started, इन्होंने शांति निकेतन को स्टार्ट किया 1901 में, a school where children could study while being close to nature। तो ये एक ऐसा स्कूल था जहाँ पे बच्चे नेचर से कनेक्ट होकर पढ़ाई करते थे, where they could be creative and give expression to their thoughts and desires। तो वहाँ अपने वो विचार और अपनी इच्छाएं रख सकते थे, बता सकते थे। अकॉर्डिंग टू टैगोर,
Our formal education system is suffocating and possessive. It kills the natural desires of a child to be creative and imaginative. तो उनका ये मानना था कि जो हमारा एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें हमारा जो बच्चा है वो सफोकेटिंग है, वो उसको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, ठीक है। एंड नेचर उसका उनका जो द किल द नेचुरल डिज़ायर, उनको ऐसा लगता था कि बच्चे का जो नेचुरल डिज़ायर है, जो क्रिएटिविटी है, जो इमेजिनेटिव है, इमेजिनेशन होती है, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। सो दस मैनी थिंकर्स and were thinking about an alternative national education system which would make the student understand the appreciate Indian values and culture ethos besides scientific reasoning। तो वो ये चाहते थे कि हमारा खुद का एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए और जो भी इसमें पढ़ाई होती है उसमें इंडियन एग्रीकल्चर और हेरिटेज कल्चर के साथ साथ साइंटिफिक रीजनिंग की भी पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसा हमारे कुछ इंडियंस थिंकर्स का सोचना था। ओके।